जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन आपका स्वागत करता हूं प्रोग्राम बदलते दौर में। बदलते दौर में सुपर संडे में एक रोमांचक टॉपिक, और मैं हूंगा अपने पैनलिस्ट के साथ आपके साथ रूबरू। बट उससे पहले आज की हेडलाइंस। मुलायम सिंह यादव आगरा लखनऊ एक्सप्रेस के शिलान्यास करते समय अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी पर भड़के। एक पर योजना चोरी करने का इल्जाम तो दूसरे पर ढीली रफ्तार का इल्जाम। वर्धमान बम ब्लास्ट में ममता बनर्जी ने बीजेपी और आरएसएस पर लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल हावड़ा के पास बीजेपी कर रही थी मीटिंग, बम फटा, 2 विधायक घायल। अफगानिस्तान में बॉलीवुड मैच के दौरान आत्मघाती हमला, 40 की मौत। पिछले 10 सालों में बढ़ी साक्षर दर 10%। सुरेश प्रभु ने रेलवे अधिकारियों से कहा, गोद ले रेलवे स्टेशन। और क्रिकेटर श्रीशांत अब दिखाएंगे जलवा बड़े पर्दे पर, निर्देशक पूजा भट्ट ने दी जानकारी। जो जापान में आए भूकंप में 39 लोग घायल। और अजरुद्दीन ने कहा, एक मैच के ऊपर कोहली को कप्तानी को ना करे जज। तो हेडलाइंस के बाद अब समय है आप सभी को रूबरू करवाने का पैनलिस्ट से और आज के टॉपिक से। आज का टॉपिक है, डू वी नीड मास बेडिंग इन डिसेबल सोसाइटी, और व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ द मास बेडिंग। मास बेडिंग क्या है, इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इस पूरे टॉपिक पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए आई हैव गॉट द प्रेसिडेंट ऑफ डिसेबल्ड मैट्रिमोनियल वेबसाइट, Mr. Ankit Kapoor, first time joining me in the discussion. Mr. Ankit, welcome here. Welcome, sir. I have got Mr. Subramani, sub-editor of Deccan Herald and the constant panelist of our discussion. Subramani sir, welcome. Thank you very much. I have got our director, Meenal Singhvi ji. Ma'am, welcome. Thank you, Danish. Thank you so much. We have invited a few people for this, few panelists for this discussion as well. Shortly we will connect it. We have given the invitation to the Narayan Seva Sansthan. Unfortunately, they are not joining us. Maybe Ma'am Shushmita Bhumna will join us shortly. Mr. Annabaram, a sociologist in Hyderabad University, will join us shortly. Well, as soon as we get connected to them, we will talk with them. Let us start the discussion today. Subramani sir, the first question for you, what is mass wedding? No, mass wedding is not new in India. Okay, if you historically look at people, weddings by itself are community events, and marrying more than 2 or 3 couples is not considered a bad thing.
However, in the last few centuries, probably in the last few decades, mass weddings has come to represent charity. You do mass wedding for poor people. You do mass wedding for people who marry from intercaste or intercommunal, sort of between castes and between communities. And predominantly, mass weddings have come to represent marrying disabled people with either able-bodied people or with fellow disabled people. So it should not have been a symbol of charity, but unfortunately, in recent times, mass weddings have come to represent a very unfortunate symbol, because it does not look any different from treating persons with disability as a whole mass and not as individuals. When a Bollywood actor can have his sister wedded off in such a pompous way, it's not impossible to organize even a very small wedding for individuals in an individual way and make it look dignified. But unfortunately, charity organization wants their photo opportunity. They want publicity. They want to claim that they have done something for the society. And for all these reasons, persons with disabilities and their causes are exploited. And I definitely condemn any such attempt to make marriages are something very sacred in our society, and it is sacred for two individuals who start their life together. So it should not be demeaning, it should not be made to look trivial. Okay. That's what I feel. And you will be agreed, Subramani sir. And the most important thing, I agree with you. You are saying they are photo opportunists. And when we want to ask the questions, they run away from the discussions. Nobody wants to give the answers. If public want, just they want to. Because you are asking the right question. You are asking the right question. Yeah. And in the past, no blind person or no disabled person has asked them any question. Remember one thing, they are not just giving you just a marriage, they are giving you sari, some costly sari, some money, some golden Mangal Sutra or whatever, bangles. So what happens is, sometimes people who cannot afford any of these things, they just took it, stood in the queue, one celebrity will come and say, okay, you're all married, and it was over. Which is the worst, the pathetic way of getting married. Now, of course, you're educated. People are educated. People know that that's not the way weddings are conducted. And now people are questioning. And these people are scared. They're worried. So they will run away if you ask them. Okay. So let's invite Ankit in the discussion. Mr. Ankit, आपसे जानना चाहते हैं, आपने डिसेबल्ड मैट्रिमोनी भी स्टार्ट की है, तो मैस वेडिंग को लेके सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं, सोसाइटी इसको किस नजरिए से देखती है और आपका खुद का नजरिया क्या है? मास वेडिंग के पक्ष में है आप जने? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ, क्योंकि ऐसे अरेंजमेंट्स जो हैं होने चाहिए हमारे डिसेबल समाज के लिए। कोई ना कोई प्रोग्राम्स जैसे होते हैं, नॉर्मल में तो ज़्यादातर संस्थाएं काफ़ी जो हैं ऐसी चैरिटी करती हैं, पर हमारे डिसेबल समाज में बहुत कम लोग हैं जो इस तरीके के मैक्स वेडिंग वगैरह के जो सिस्टम हैं, प्रोग्राम्स हैं, अरेंज कर रहे हैं। इससे हमारे डिसेबल समाज को काफ़ी हेल्प मिल सकती है। वैसे जो होता है मेनली जो मैक्स वेडिंग, जो नॉर्मल समाज है हमारा आम समाज, उनमें ये समस्या आती है कि जो लोग दहेज नहीं दे पाते हैं, जो लड़कियां हैं, जो गरीब तबका है समाज में, उन लोगों को एक जगह पे एकत्रित करके जो है शादी समारोह वगैरह अरेंज किए जाते हैं। पर हमारे समाज में जैसे डिसेबल लोग काफ़ी अच्छे सेक्टर में जॉब भी कर रहे हैं,
प्राइवेट सेक्टर में भी हैं। ये है कि हमारा समाज थोड़ा सा बिखरा हुआ लगता है, तो इनके लिए ये बहुत काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है जो मैक्स वेडिंग है। तो मेरे हिसाब से मैं इन चीज़ों के पक्ष में हूँ भी, ये होना चाहिए हमारे समाज में, ताकि एक दूसरे को नज़दीकी आने का मौका इससे मिलता है। बहरहाल हमारे साथ सविता मैम है। शी इज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इन जाकिर हुसैन कॉलेज, दिल्ली। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी मैम। थैंक यू वेरी मच दानिश। मीना जी, क्या आप भी मानती हैं कि मास वेडिंग सिर्फ एक सेलिब्रिटी इवेंट है, एक फोटो अपॉर्चुनिटी है? आप क्या मानती हैं कि लोगों को मास वेडिंग के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? दानिश, जैसे कि अभी सुब्रमण्यम सर ने कहा था कि मोस्ट प्रोबेबली ये होती है पुअर पीपल के लिए। तो पहले तो मैं अपना व्यू बता दूं कि मैं तो कम्प्लीटली इस फेवर में नहीं जाती कि मास वेडिंग की तरफ ही जाना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से उसको अरेंज करती है, पहली बात तो। क्योंकि जैसे कि सही बात है कि फोटो आजकल ये हो गया कि सब कुछ नेम फेम के लिए भी किया जाता है, तो हम ये कम्प्लीटली नहीं बोल सकते कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये जो संस्था है ये पूरी तरीके से उस वेडिंग के मतलब वो नेम फेम के लिए कर रही है या किसके लिए, हम नहीं कह सकते। तो मैं ये कम्प्लीटली इस फेवर में नहीं जाती। और द थिंग इज कि ये ज्यादातर पूरे लोगों के लिए मास वेडिंग ज्यादातर होती है, तो एक वो मिल जाता है एक प्लेटफॉर्म उन्हें वेडिंग करने के लिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि डिसेबल्स की आजकल शादी होना बहुत मुश्किल मानते हैं लोग, तो उनके लिए शायद इस कारण से वो लोग मास वेडिंग की तरफ जाते हैं, मेरे ख्याल से। जी, मुझे लगता है कि एक प्लेटफॉर्म पे उन्हें मतलब वो सब कुछ शायद जो वो चाहते हैं जिंदगी में, कुछ सपने होते हैं लोगों के जो शायद यहाँ पे फुलफिल हो सके वेडिंग को लेके, ये सोच के शायद मुझे लगता है कि लोग इस प्लेटफॉर्म पे आना मतलब इस तरफ मुड़ रहे हैं। सविता मैम, आपसे जानना चाहते हैं कि अगर हम एनजीओ के प्रोस्पेक्टिव से देखें कि भाई एनजीओ एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं इससे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि जो काफी लोग हैं उनको जीवन साथी मिल जाता है, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, उनकी कोई ख्वाहिशात पूरी हो जाती हैं। तो क्या लगता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि इसमें जो हमारे सामने आ रहा है, मैरिज जो है दो आत्माओं का मिलन है, दो पर्सन्स का यूनियन है, तो वो किसी भी माध्यम से हो पा रहा है पॉसिबल अगर, तो हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए। पहली बात तो ये है। और दूसरी चीज ये है कि मास वेडिंग में अपने कुछ अलग अलग वो है कि हम उसे किस तरह से समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है हमारे लिए और एग्जैक्टली होता क्या है। तो जो लोग इसके लिए जाते हैं वो इसे आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि उनके पास ये फर्स्ट ऑप्शन नहीं होता होगा, ये उनके लिए लास्ट ऑप्शन होता होगा और एक ऑल्टरनेटिव होता है उनके लिए कि चलिए अगर हम किसी भी माध्यम से हमारे लिए कुछ ऐसा पॉसिबल हो रहा है, हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना पाएंगे, कुछ हमारे जो चीजें छूट रही हैं, जो सपने हमारे छूट रहे हैं, अगर हम उन्हें पूरा कर पाएंगे तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो किसी भी तरीके से अगर वो अपने इस चीज को अचीव कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये एक प्लेटफॉर्म अगर उन्हें मास वेडिंग वाले तरीके से मिलता है तो भी कोई गलत बात नहीं है। लेकिन इसमें ओवरऑल जो मैं आगे डिस्कशन में ये पॉइंट रखना चाहूंगी वैसे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें, प्रॉब्लम हमें क्यों लगे, ये मैटर ऑफ डिबेट क्यों बन रहा है कि सही है या नहीं है। तो इसमें ये है कि देखिए मास वेडिंग की बात ये है कि कोई एक आपका कोई एक गार्जियन बन रहा है, कोई एक एनजीओ आपके लिए सब कुछ कर रही है और वो क्योंकि उसके लिए सभी बराबर है तो इसलिए वो सबके लिए एक साथ कर रही है, एक जैसे तरीके से कर रही है और उसे रिसोर्सेज सभी के लिए एक जैसे जुटाने हैं तो वो सबको एक साथ करके अपने एक ही तरीके से रिसोर्सेज कलेक्ट करने के तरीके से सबके लिए भला करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम देख रहे हैं, जो बाहर से दिखाई देता है, अगर आप उस फ्रेम के बाहर हैं तो आप क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि एक जगह पे बहुत सारे लोगों की शादी हो रही है और एक तरह का ये इवेंट जैसा बन गया है, एक पब्लिक इवेंट बन गया है, जो कि शादी तो एक पब्लिक इवेंट होता ही है, लेकिन उसमें शायद जो एनजीओ है उसका रोल बहुत ज्यादा हाईलाइटेड होता है और
जो आप उन लोगों के जो अपने करीबी लोग होते हैं वो शायद वहाँ पर नहीं होते, या वो लोग अपना रोल नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए एक एनजीओ को उनकी जगह इन लोगों के लिए एक रोना पड़ रहा है। तो इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है कि हमें एंड रिजल्ट देखना चाहिए, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है। अलग अलग लोग, डिसेबल लोग अलग अलग रह जाए, अलग अलग कोने में रह जाए, सब अपनी अपनी फीलिंग के साथ अलग अलग रहे, उससे अच्छा है कि कोई उन्हें एक साथ कर दे। जी, थैंक यू। Well, now Director of Voice Vision, ma'am, Shushmita has joined, but I am sorry to say that, ma'am, you have given us time at 9 o'clock, but you are late, so you should have the responsibility that we are representing thousands of listeners. I'm really sorry to say that, but I have to. Well, now I will start my simple question to you. आपके क्या विचार हैं इस मास वेडिंग को लेके? क्या सोसाइटी हमारे, डू वी नीड डिसेबल सोसाइटी की अगर पर्टिकुलर बात करें तो? मैम, आप सुन पा रही हैं हमें? आपका क्वेश्चन मुझे एड्रेस था? जी बिल्कुल, आपको एड्रेस था। सुष्मिता मैम, आपसे। आप इसे दोहराइए जरा क्वेश्चन। मेरा क्या मास वेडिंग के पक्ष में है आप, और क्या डिसेबल सोसाइटी में इसकी जरूरत है? Before I answer your question, मैं दिल्ली से आई थी, तो इंटरनेट है ना काफी बार हमारे बस में नहीं है। मैं काफी बार ऑलरेडी आपके प्रोग्राम में आती हूँ। ये जिसकी शोर आ रहा है किसी की ओर से, प्लीज रेक्टिफाई करें इन्हें। हर किसी के फैन की जान। जी मैम, बोलिए। हेलो जी, नाउ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अभी क्लियर, आप बोलिए प्लीज। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मैं काफी बार ऑलरेडी आपके कार्यक्रम में आ चुकी हूँ। जी बिल्कुल। तो आप जिस तरह से बोल रहे हो कि मैंने रिस्पेक्ट नहीं करी टाइम की, तो ये गलत है। Well, let listener decide it. Please answer my question. Thank you. हाँ? Let listener decide that. Let's leave on the listeners. आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए प्लीज। Thank you so much for coming in the program, but yeah, go ahead. तो मेरे हिसाब से मेरा पर्सनल व्यू है कि सामूहिक विवाह अच्छी चीज है, काफी जन के लिए ये बहुत बेनिफिशियरी रही है। जहाँ तक मैंने जिन भी कपल्स को जाना है कि काफी सारे जन हैं जिनकी सामूहिक शादी हुई, उसके कारण वो आज अपनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं। तो मेरा इन शॉर्ट कहना है कि हाँ, सामूहिक विवाह कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे कि मैडम ने कहा कि काफी अलग अलग एनजीओज हैं, उनकी प्रायोरिटीज क्या है और उनका जो तरह से वो करते हैं, उसमें हर चीज के दो पहलू होते ही है। थोड़ी अच्छाई होती तो वहाँ थोड़ी बुराई भी होती ही है। तो बट मेरे हिसाब से ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। मतलब डिसेबल सोसाइटी में भी ऑप्ट करना चाहिए इसको, आप मानती हैं? करना चाहिए, लेकिन अगर डिग्निटी मेंटेन की जाए, मेरा सबसे पहला वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका। ये इसी पे हम आज बात करेंगे। Subramani sir, now I want to know, we have seen, I agree with you and Shushmita ma'am is saying the same. Now my question is, if some NGOs organize the mass wedding, do they only organize or somebody takes the responsibility after that? Do they provide any legal safety or do they take care of for some time? So do they get the information, the people are happy or everything is going on the way? To the best of my knowledge, none of them care about what happens after that. Okay, it's like a fairy tale, you know. It's assumed that they live happily ever after. But the point is, unfortunately, it's not enough if you bring two people together and allow them to tie the knot and then leave them in the lurch. And there are majority of cases where people don't even have money to run a family of their own. You know, if they happen to be people who are earning, then there is at least a possibility that they will do something for themselves. But given the level of poverty among persons with disability, in most cases, marriage only comes as an additional burden, a sort of an added challenge, instead of becoming
a lifelong enjoyable companionship. That is number one. Number two, if you look at it only from this point of view, it's very good that you have pointed out this one, because if people care about another person's dignity, they will never do something like this. And they do it obviously 99% of cases. See, I'm a journalist. I've seen a couple of them. I've been invited to a few of them, which I refuse to go, by the way. The main reason is because they want publicity. You know, the organizer will call you and say, I have done this. You know, I spent 55,000, 60,000 on saris. I've spent so much on that. So they want everything to go on record, just to prove a point that they are more charitable. But what does it say? It only says that you are not treating these people better than how the whites treated their slaves, or you know, how someone would treat his animals, which is, I'm sorry to use all these terms, but that is how it sounded to me. And I really felt bad. And probably at that point in time, I decided that if I get an opportunity to write very strongly or speak very strongly about mass wedding, I will do so with you know, with all the force and might I have, because you know, as an individual, it is an affront to my self-respect and dignity if someone were to treat me as a part of a crowd or a group. You know, yeah, this person is blind, that person is blind, everybody is blind, so treat all the blind people together. That's not the way society should treat us, and that's the way the society has been treating us so far, and that's why we are not making people understand that we are individuals like they are, and we are different. Even among blind people, there are different kinds of blind people. They don't even understand that. So in general, I would say that mass weddings should be boycotted and mass weddings should be discouraged. Okay, discouraged. Okay, I got your point. Now, Ankit ji, आपसे जानना चाहता हूँ that Subramani sir has strong view over that. I have a question. It comes for the dignity. Now, see, कि अगर blind लोगों की हम बात करें, तो अगर अब जनरली बात करें तो ब्लाइंड जो टोटली ब्लाइंड है वो टोटली ब्लाइंड से शादी नहीं करना चाहता, जो पार्शली है वो साइटेड से शादी करना चाहता है. तो अगर उस तरीके से भी हमारी सोसाइटी के लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं, देन व्हाट्स रॉन्ग इन द मास वेड? देखो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने जो इस सेक्टर में महसूस किया है, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरे से ज़्यादा है नीलिमा मैडम एक्सपीरियंस हैं और काफ़ी लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, पर जो मैंने आज की युवा पीढ़ी को देखा है, I'm sorry, but go ahead. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने 6-7 मंथ हुए हैं मेरे को इस काम में लगे हुए, तो मैंने एक ही शादी अभी करवाई है छत्तीसगढ़ से. तो वो लड़की फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो लड़का टोटली ब्लाइंड है. जो मैंने देखा है, लोगों के व्यू आ रहे हैं मेरे पास, जो प्रोफाइल्स आ रहे हैं, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ कि जो ब्लाइंड लोग हैं, वो ब्लाइंड लड़का है चाहे वो ब्लाइंड, अभी लड़कियों का रिस्पांस फिर भी मेरे को अच्छा आ रहा है कि हम ब्लाइंड लड़के से शादी करने के लिए तैयार हैं, पॉजिटिव है बिल्कुल. पर जो मैंने ब्लाइंड लड़कों की देखी है समस्या, वो ब्लाइंड लड़की के साथ शादी करने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है. जो रह गया लो विजन वाला मैटर, लो विजन जो लड़कियां हैं वो भी चाह रही हैं कि हमें नॉर्मल लड़का मिले, हम नॉर्मल लड़के से शादी करें. तो सोच में मैं जानना चाहता हूँ समाज का क्या रवैया है मैस वेडिंग को लेके, लोग इसको अच्छा क्यों नहीं मानते? अच्छा, मेरे हिसाब से ये, क्योंकि हमारे समाज के लिए ये एक बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा डिसेबल समाज है ना, मैंने पहले भी ये बात रिपीट की है कि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जो एनजीओ चल रहे हैं उनके पास उनके कांटेक्ट अवेलेबल हैं, तो वो उनके लिए एक अच्छा जरिया है, वो एक दूसरे को जोड़ सकते हैं. कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इस एनजीओ से एजुकेशन लेके गए होते हैं, तो कई संस्थाओं के साथ भी उनका कांटेक्ट होता है. इंडिविजुअल लोग वही सक्सेस होते हैं इस फील्ड में जिनके पास टेक्नोलॉजी है, मेरा ये मानना है, जो मैंने महसूस किया है. जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना,
वो ना तो वेबसाइट पे आ पा रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे, चाहे वो शादी.com है या मैंने बनाई है, तो उनके लिए ये एक वरदान सिद्ध हो सकता है जो है सामूहिक विवाह। जिनके पास टेक्नोलॉजी है उनको इस चीज की कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। तो जिनके पास टेक्नोलॉजी है वो तो अपने आप वेबसाइट पे जाके सर्चेस वगैरह कर सकता है। जिनके पास नहीं है टेक्नोलॉजी, तो उनके लिए तो ये जो है प्रोग्राम जरूर होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल, आई गॉट योर पॉइंट। जी मीनल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी एनजीओ इस सेक्टर में काम क्यों नहीं कर पा रही है, क्या रीजंस हैं? हम देख रहे हैं कि मैरिज सेक्टर में कुछ भी ऑफिशियली कुछ भी नहीं चल रहा। हालांकि सभी एनजीओ क्लेम करती हैं हम अपने अपने लेवल पे कर रही हैं, लेकिन डिसेबल मैट्रिमोनियल के अलावा आई डोंट नो, एक और भी वेबसाइट है, लेकिन कोई ऑफिस जहाँ इस तरह के मैस इवेंट हमारी बहुत सारी एनजीओ कहीं भी नहीं किया जा रहा। क्या रीजन है? एक्चुअली जैसे कि आप ही बोल रहे हो कि ज्यादातर लोग ब्लाइंड शादी नहीं करना चाहता, जो पार्शली है वो चाहता है कि साइटेड से शादी करे। और वैसे भी मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर एनजीओ या मतलब ब्लाइंड फील्ड की कोई एनजीओ इस फील्ड में काम करे, इसकी वजह ये है कि जो डिसेबिलिटी फील्ड है वो अगर सारा मिलके करे तो इससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है। कि जैसे अगर कोई ब्लाइंड साइटेड से शादी करना चाहता है तो उसके लिए ये खुल जाएगा, अदर डिसेबिलिटी से तो कर ही सकता है। अभी एक रिसेंटली चेन्नई में एक एनजीओ ने किया था 9 नवंबर को शायद मेरे उन्होंने 35 या 34 लोगों की मास वेडिंग करवाई थी, जिसमें कि सभी टाइप के लोग थे। पोलियो की एक लड़की थी जो कि काफी सालों से वो कोशिश कर रही थी कि उसकी शादी हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रही थी, जबकि उसने पीएचडी की है। और 32 इयर्स के होने के बाद जब वो पूरी तरीके से हार गई थी तो उसने इस श्री गीता भवन ट्रस्ट से कांटेक्ट किया और वहां पर उससे एक लड़के से मतलब मुलाकात हुई और इस ट्रस्ट ने इतने अच्छी तरीके से काम किया। तो मतलब उन्होंने 2 महीने का उन्हें टाइम दिया, उनकी फैमिली से मिलाया, दोनों को एक मतलब टाइम देके आप दोनों एक दूसरे को समझो, और उसके बाद उन्होंने उनकी वेडिंग करवाई। ये और एक निर्मला सिंह के साथ ही नहीं, ऐसे 35-34 जो कपल थे सभी के साथ उन्होंने ये सब कुछ किया। और इसमें जो इनका एक नंबर उन्होंने रखा था जो कि था साइलेंट साइन सिग्नेचर के साथ में, जहाँ पे मतलब सभी टाइप के डिसेबिलिटी, जो हियरिंग प्रॉब्लम थी, ब्लाइंड थे, पोलियो से भी काफी लोग थे। और ये जो लड़की थी इसकी ख्वाहिश थी कि अदर डिसेबिलिटी से शादी करे, लेकिन कोई भी चलेगा उसको, ऐसे टाइप था। ये लड़की के दोनों पाँव काम नहीं कर पा रहे थे और ऑब्वियस है कि कोई भी लड़का चाहे ब्लाइंड ही क्यों ना हो ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो खुद को ही चल, क्योंकि ब्लाइंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे हर बात के लिए मतलब मोबिलिटी के लिए शायद किसी न किसी की हेल्प लेनी पड़े, और वो सोचेगा कि भाई मैं खुद ही किसी पे डिपेंड हूँ और फिर ऐसी लड़की को अगर मैं घर में ला लूंगा तो उसकी सेवा कौन करेगा। लेकिन इस टाइप की वेडिंग अगर पब्लिक सभी डिसेबल लोग मिले तो यहाँ पर काफी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और कर भी रहे होंगे लोग काम, बोलते हैं लोग, क्योंकि अभी तक मैंने 3-4 डिसेबिलिटी मास वेडिंग देखी है जो हुई है। वहां पर ब्लाइंड भी थे, हियरिंग भी थे, पोलियो से रिलेटेड भी काफी लोग थे। ये नारायण संस्था सेवा ने जो करवाई थी 92 लोग, उसमें भी काफी लोग थे, 92 कपल्स की उन्होंने वेडिंग करवाई थी। तो कोशिश तो हर कोई कर रहा है। ये पर्टिकुलर अगर कोई आप एनजीओ की बात करो तो मुझे लगता है कि इनको मर्ज होके काम करने में ज्यादा बेनिफिट है सभी। वेल, योर पॉइंट इज नोटेड। अन्नावरम सर के लिए मेरे पास एक प्रश्न था, लेकिन बहरहाल वो नहीं जुड़ पाए। सविता मैम आपसे जान धनुष जी, okay. I'm here. I've got connected. Thank you so much, Annavaram sir. Thank you. Sorry for trying from no problem. You're trying from 8:45, but due to internet, as Shushmita ma'am pointed out before. Annavaram sir, आप सोशियोलॉजिस्ट हैं और आपकी गहरी नजर है इस सब्जेक्ट के ऊपर, तो जानना चाहेंगे कि आप मानते हैं कि जो मास वेडिंग है ये कास्ट रिलीजन को दूर कर देती है और ये समाज को जोड़ने का काम करती है, जहाँ आप इसके पक्ष में है या नहीं है? सामाजिक तौर पे आपके क्या विचार हैं? I think let me point it out very clearly. The very concept of the mass wedding itself is very class and caste specific. It is generally targeted at a very poor people who don't have money even to tie a knot, even to buy a knot to tie. Okay. That was the concept. ये रीजन ये भी है इसीलिए कि समाज मास वेडिंग को इतना बुरा से देखती है, क्योंकि जो उतना कॉन्सेप्ट है, जो एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज समहाउ हैज दिस स्पेसिफिक नोशन
मुझे कभी ऐसा नहीं लगता, एटलीस्ट वी हैव कपल ऑफ studies in Gujarat, we have studies in Rajasthan on mass weddings across, but there is no evidence whatsoever to tell the audience where the intercaste and interreligious happen. Most of the time when organizers ensure that a particular caste people together come and a particular religious people come together. And for example, I have never seen a Christian mass weddings. I have never seen a Muslim mass weddings. I mean, most of the time mass weddings have happened in Hindu temples. And unfortunately, I would also say this, though I agree with a lot of people, a good number of our discussions today. Unfortunately, this is now spreading into the disability society. I partly agree with Mr. Subramaniam that yes, this is I think I do not use the strong word to say boycott, because if a particular group of individuals find it useful for them, I think they should join. But I don't see a merit in it. But there is one strong view that I have, quite contrary view perhaps, what he says, that marriage is an additional challenge. I don't think that is the case. And marriage is always equally enjoyed by the disabled, be it a disabled and non-disabled couple, or disabled and disabled spouses. It could be other way around, right? And marriage has never been an additional challenge. I mean, I don't think that is the reason. But very quickly, let me say this. There are two consequences of mass wedding among the disability community society. A, it can promote unfortunate ghettoization, where you would bring all disabled people, blind, orthopedic, hearing, together and say, choose among them. This is one type of negative connotation. It means you don't give any choice. All disabled come together and they have to choose among them. The second negative connotation, which is very contrary to what I said before, the first one is that you bring a group of non-disabled people, create a kind of sympathy or charity view among them and say, here are the people, look for yourself. So all through the life, the non-disabled spouse would live and perhaps die with an illusion that he or she married a disabled spouse, absolutely out of a charity. I don't think that would really result in a fruitful marital life. Yeah. Okay. So let me invite Shushmita ma'am and then I will go quickly to Sabita ma'am. Shushmita ma'am, जैसे हमने चैरिटी की बात की पहले कि ये चैरिटी है, तो आपको इसको चैरिटी को डिग्निफाइड रूप में कैसे लोगों के सामने पेश किया जाए? क्योंकि जो हमने देखा है, जो अपर क्लास है, मिडिल अपर क्लास है, जो अपर क्लास है, वो तो इन चीजों में आते ही नहीं, पुअर क्लास ही आते हैं, तो फिर वहां पर किस तरीके से इसको डिग्निफाइड बनाया जाए? देखिए, मैं कोई मास वेडिंग एक्सपर्ट तो हूँ नहीं ना, वॉइस विजन हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मास वेडिंग के कॉन्सेप्ट से काफी दूर है। तो मेरे हिसाब से अगर इंडिविजुअली मैं कमेंट करूं कि हाँ इसको डिग्निफाइड बनाया जाए, तो जो मीना मैडम ने बोला है, मीनू मैडम ने, कि भाई आप उनको मौका दो, उनको खुद को डिसीजन लेने दो। आधी बार एनजीओस करते क्या है कि वो अपने खुद के डिसीजन सौंप देते हैं कि नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, आप इसको शादी करो, आप ये लड़की बहुत अच्छी, आप तो कर ही लो, बस ना तो बोलो ही मत। और वैसे करके फिर हम सामूहिक विवाह करें और उसका खाली एक एडवर्टीजमेंट बना दे उसके लिए, उससे वो एक हथियार बना दे कि हाँ फंड रेज करने के लिए, तो वो सब बिल्कुल भी डिग्निफाइड नहीं है। यहाँ आप, मैंने देखा है गुजरात की एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं जानती हूँ, तो वो तो पिन से लेके पियानो तक सारा चीज जो बोलते हैं एक दुल्हन को चाहिए घर बसाने के लिए, वो सब जो उस घर में नहीं है वो सब भी देते हैं। और वो उस तक देखते हैं कि हाँ बाद में भी, कि शादी के बाद में भी वो सुखी है ना। तो काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो अपने लेवल पे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ ये है कि उनने अगर एडवर्टीजमेंट नहीं किया तो इसलिए वो अननोटिस्ड रह जाते हैं, और हमें लगता है कि हाँ कोई इस फील्ड में काम ही नहीं कर रहा या कोई हो ही नहीं रहा कुछ काम, और हम डिस्कशंस कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से डिग्निफाइड कोई भी चीज हो, आप कोई भी, भले आप एक कंप्यूटर ट्रेनिंग ही कर रहे हो, लेकिन अगर उसको भी अगर आप डिग्निफाइड बनाना है तो सामने वाले के व्यूज या सामने वाले की इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए अगर आप काम करें तो हमेशा वो चीज डिग्निफाइड रहेगी, और ना कि उसको एक एडवर्टाइजमेंट मॉड्यूल जैसा बनाया जाए कि नहीं हाँ अरे 50 जन की शादी हमने करवाई देखिए। वैसा करेंगे तो वो कभी भी इनडिग्निफाइड ही लगेगा। जी
At least I'm very happy with your views, because today a person who's running an NGO is saying sometimes NGO people foist the things on the persons. Well, thank you so much. Yes, Savita ma'am, आपसे जानना नहीं, हमारे एनजीओ में तो No, I'm not talking about your NGO. Yeah. हाँ नहीं, मतलब हम ये बात का बहुत ध्यान रखते हैं। आज जो हम मैट्रिमोनियल गेट टुगेदर्स करते हैं और उसमें हमने कभी भी हमारा यही है कि मैं नहीं बताऊंगी कि ये लड़की अच्छी है आपके लिए, ये लड़का अच्छा है। आपको हमने मिला दिया, एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया, आप खुद पसंद करिए। हमारा यही उद्देश्य रहता है। जी सविता मैम, ये बात जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है जो मास वेडिंग अभी इस पे हम बात कर रहे हैं, जो साइटेड के बीच होती है या जो डिसेबल्स के बीच, उसमें कोई ज्यादा फर्क होता है? उसके नजर जो साइटेड के लोग अच्छे नजरिए से देखते हैं या डिसेबल को अच्छे नजरिए से नहीं देखते, कैसे लेती हैं आप इस क्वेश्चन को? जी सविता मैम, सुन पा रही हैं आप? We are not getting you, Savita ma'am. I think call is disconnected. Well, Subramani sir, want to know from you, do you think there is a difference between the mass wedding between the sighted and the disabled? I mean, if it is getting between sighted versus sighted or disabled versus disabled, society looks it from the different point of view, or the point of view is the same? No, see, basically, as Navaram sir pointed out, it is a way of ghettoizing people. It's a way of saying that, look, they can't afford, they are somewhat on the lower rung of the society. In fact, you kind of underline and point out that these are the kind of people who are poor. If you just walk with them on the road, probably you may not even identify them like that, but bringing them all to a sort of place and then showing them as if a showpiece thing, and conduct a wedding, in my opinion, which is nothing but a sham. Okay, no Hindu custom. I mean, I don't know about the Christian and Muslim traditions, but no Hindu custom ever allows a performance of this nature. To the best of my knowledge, and so it is just a show. So I feel that it is as indignifying and as disgraceful as it is for a blind person as it is for the sighted person. I don't think there is any difference in that. Okay, and that's why I feel that most people today use a very clever and a very easy method of getting married. They spend 25 rupees. They just spent 25 rupees. This is done by one of my colleagues, and this guy was earning about 1.25 lakhs, by the way. All that he did was, he went to the local registrar office, got his marriage registered, took a couple of his friends, got them signed. So he paid 25 rupees for the certificate. Okay? And if you are religious, you go to a temple, perform all your religious rituals, and pay another 100, 200 rupees, and take all your friends to a hotel, have a good meal, get home. There ends your marriage. I am sure that this method can be propagated, because this is legally binding. Okay, when two people are getting married, it's very important that you have a marriage certificate, especially in the case of persons with disability. And secondly, when you allow two people to choose between them, unlike in mass weddings, where people could be mixed up and they sometimes may not be properly introduced to who they are getting married to, or don't have enough opportunity to get to know the other person. This method could be a very good way of first getting two individuals together and then allowing them to decide that they want to get married, and then take them to the local registrar office, pay the 25 rupees, get that done. If NGOs can do this, I'm sure if NGOs are not doing this for publicity, they may claim that they don't do mass weddings for publicity. If that claim is true, let them do this, and then definitely I'll agree. I will not only write an article, I'll write a book about them. Okay? Okay, but I want to know simply from you, as you are putting the strong views against it, do you see any kind of advantage, or you simply say no? Which one? Advantage of mass wedding? Yeah.
the advantage is for the person who is doing it, yes, but not for people who go there, stand like all this poor lamb, wearing this one, and they don't even know where they are sitting, where they are standing, which side they have to face. They don't know what is happening. And I have seen a couple of them, as I told you. It is a pathetic sight. It is, at least for the persons with disability, it is a pathetic sight. It is done. I tell you who do it, okay? The charities that are owned by politicians, okay? If you look at political party leaders, if you talk to them, they will say that, when they look at me and they know that I am blind, okay? They tell me that, I have done a lot of good things for the blind. What did you do? I conducted mass weddings. And then all the good opinion I have about the man goes. That's all. Okay? Because everybody wants publicity. It is good for the organizer, not for the recipient. Okay. जी सविता मैम was disconnected before, now she joined. सविता मैम, इस व्यू को आप क्या लगता है कि डिसेबल एनजीओस को इसको प्रोपोगेट करना चाहिए इससे, और अगर इसको डिग्निफाइड बनाना है, जब इसको चैरिटी लेवल पे ना देखा जाए, तो आपको लगता है ये संभव है? देखिए, मैंने सिर्फ इस चीज की एक बात की तारीफ की थी कि ये दो लोगों को मिलने का मौका दे रही है, जो कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा आसान तो नहीं है, किसी के लिए भी आसान नहीं है, तो डिसेबल लोगों के लिए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इसके साथ और चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे एनजीओ का रोल है, तो एनजीओ का रोल तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल उसमें आ चुका है आज की डेट में। सभी कुछ पब्लिसिटी से जुड़ गया है। बहुत कम चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ किसी के वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से की जा रही है। मुझे एक चीज लगती है कि इसका जो हम दूसरा एक वो देख सकते हैं, मैंने कोई मास वेडिंग, जैसे अभी सर ने बताया, उन्होंने देखा है, मैंने इस तरह से कहीं जाके देखा नहीं है अभी तक, मेरा ये इस तरह का एक्सपीरियंस है नहीं कि एग्जैक्टली वहाँ पर क्या हो रहा होता है, किस तरह से वो जो मैं एंड प्रोडक्ट देख रही हूँ वो कैसे सामने आता है, वो मैंने इसका प्रोसेस नहीं देखा है। शायद इसलिए मैं वो वाली चीज मिस कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो मैंने किसी को देखा है मास वेडिंग से, उन लोगों की शादी हुई और आज वो लोग बहुत अच्छी जिंदगी, बहुत हैप्पी लाइफ उनकी है, अच्छी फैमिली उनकी है, और वो लोग आपस में बहुत सेटिस्फाइड हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इसका क्रेडिट देते हैं कि इस मास वेडिंग के थ्रू उन लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो मुझे लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी को देने के तरीके हमें दूसरे निकालने चाहिए। वही मैं जानना चाहता हूँ, कौन से? हाँ, जैसे कि दूसरे तरीके, जैसे कि हम एक नेटवर्क बना सकते हैं, हम खुद एनजीओ को के साथ ना जुड़कर अपना इंडिविजुअल लेवल पर एक नेटवर्क शुरू कर सकते हैं। जितने लोगों को हम जानते हैं उन सबको, जैसे जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या जो लोग इस तरह का कुछ व्यू रखते हैं, जरूरी नहीं है कि मैरिड हो, कुछ इस तरह का अपना व्यू रखते हैं, कोई उनके पास विजन है इस चीज को लेकर, तो वो अगर थोड़ा सा आगे आए तो हम एनजीओ की गलत चीजों को रोक सकते हैं, और जो हम अच्छा चाहते हैं उसको हम प्रमोट कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि हम अपना एक नेटवर्क बनाए, जैसे ये रेडियो उड़ान एक नेटवर्क बना है, उसी तरह का एक नेटवर्क बनाया जाए जिस पर इस तरह की लोगों के मिलने के लिए, लोग बातचीत के लिए एक तरह का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए, और वहां से लोग सिर्फ एक दूसरे को बात सुनकर, एक दूसरे के बारे में जानकर, फिर आगे सिर्फ एक लिंक हम इंडिविजुअल लोगों पर छोड़ दिया जाए, उनकी जैसे सुष्मिता मैम कह रहे हैं, सुब्रमण्य सर कह रहे हैं, तो उस तरीके को आप फॉलो करते हैं। वेल, आपने रेडियो उड़ान का जिक्र किया, तो मैं लिसनर्स के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि 7 तारीख से हर संडे 7 बजे से 8 बजे तक एक शो आएगा जिसका नाम है कैच योर मैच। तो उसमें आप अपना जीवन साथी पा सकते हैं, तो सुनना मत भूलें। 7 दिसंबर से हर एतवार 7 से 8 कैच योर मैच। वेल, अन्नावरम सर, आपने जी धनिश, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। जैसे इस तरह के, अगर हम इस तरह के हमारी तरफ से इनिशिएटिव लिए जाएंगे तो अपने आप एनजीओ को कोई अप्रोच नहीं करेगा, कोई नहीं जाएगा वहाँ मास वेडिंग के लिए, अगर उनके पास दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। जी, तो अन्नावरम सर, आपको इनवाइट करता हूँ, और आपसे अभी आपने नेगेटिव 2 व्यूज बताए, तो आप समाज शास्त्री हैं, तो इसको पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव
पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या एडवांटेजेस हो सकती है, और आप ज्यादा बढ़िया बता सकते हैं कि इसको कैसे डिग्निफाइड बनाया जा सकता है और इसकी वाकई जरूरत है या नहीं है? I think yes, that is also important. कितना विशाल भारत, जबकि ज्यादा से ज्यादा लोग रूरल एरिया में रहते हैं, it is very easy for us even to sit in the urban areas and talk about the dignity in a different point of view. I think this is also important for us to look at if this is going to help people of a different kind. Perhaps maybe we shouldn't start with a mass marriage or mass wedding. We should start with a get together, maybe in a different language for those areas. Identify the people, ensure that they meet once every month, 6 months, in a dignified fashion. Perhaps if you do that continuously for a while, I don't think there would even be need for us to think of mass weddings, because people themselves can come together, can make up their mind, and then let's share our life. And help those people individually. Don't bring all of them together, 20, 30, 40 people together and say this is a mass wedding. I think find out the individuals once they make up their mind, and also look at the compatibility if their decision is really going to be viable. And do this individually. Of course, you can do it if they wish in a religious fashion, you do it legally through a registration process. But I think because to be marriage is a very, very sanctified event, and it is purely individual event, and it's a private affair. Absolutely. I mean, the very concept of mass wedding, be it for disabled or non-disabled, somehow transcends that boundary. Make it a public event and celebrate it in a different way, politicize it. I think this is not really going to send a good message. I mean, we have to respect the fact that it is a private event between two individuals and two families. And we should respect that solitude. There are many ways. I think, as I think Ms. Sabita was rightly pointing out, Sabita ji ने सही कह रही थी कि बहुत लोग हैं अपने जैसे भारत के जैसे रूरल एरिया में जिसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है दूसरों से मिलने के लिए. सबके लिए भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि मिले और दूसरे लोगों के बारे में जाने, और कैसा, क्योंकि disabled also have their fantasies and they want to have a kind of a boy, not necessarily disabled or non-disabled. For example, a blind woman can think of having a tall husband, be a blind or a sighted. That's a different story, right? And an orthopedic handicapped girl can think of having a fair boy. I think they should get the chance to look at them. They should have an interaction. There should be a platform. Let's call it a pre-marital platform or whatever you call it. But mass wedding as a concept, I think, should be discouraged, if not completely defamed. I think there are ways to do it. There is ways. Okay. सुष्मिता मैम, गेट टुगेदर को बढ़ावा देना चाहिए एनजीओ द्वारा या मास वेडिंग को देना चाहिए? और एक सवाल, क्योंकि आप एनजीओ चला रहे हैं काफी लंबे अरसे से, तो जब रजिस्ट्रेशन फीस की बात आती है तो आजकल तो ब्लाइंड बहुत कमा रहे हैं, सभी डिसेबल्ड या सभी, तो आपको लगता है कि अगर स्मॉल अमाउंट भी रखा जाए तो लोग फॉलो नहीं करते हैं और ब्लेम करते हैं कि एनजीओ पैसा खाती हैं? कैसे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? दो सवाल आपके लिए. देखिए, किसी को भी ब्लेम करना तो मेरे लिए सबसे आसान काम है ऑन एन इंडिविजुअल लेवल. तो एनजीओ को ब्लेम करो या किसी को भी ब्लेम करो. मैं कुछ जो पॉइंट्स मैंने जो उठाए हैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले, एक कि शादियां भले लव मैरिज हो, अरेंज्ड मैरिज हो या मास वेडिंग से हो, सक्सेसफुल होगी नहीं होगी ये वो दो इंडिविजुअल्स और उनके परिवार पे निर्धारित है. बाकी किस तरह से शादी हुई है, किस मतलब फॉर्मेट में हुई है, वो जरूरी नहीं होता है कि इस तरह से लव मैरिज हुई है तो 100% है. कोई किसी तरह से भी गारंटी नहीं दे सकता. दूसरा, मैं सामूहिक विवाह में अपने आप को जाना चाहती हूँ नहीं जाना चाहती, ये इंडिविजुअल का कॉल होना चाहिए. डेफिनेटली ये पॉइंट है डिस्कशन का, बट ये एज एन इंडिविजुअल मुझे जाने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करनी जरूरी है कि वो क्या कर रहा है और किस तरह से कर रहा है, क्या मुझे वो मान्य है. अगर मुझे मान्य तो मुझे वहां जाना चाहिए, पहली बात. दूसरी बात, वहां जाने के बाद वो एनजीओ उसको किस तरह से कर रहा है, कितना
इन्वॉल्वमेंट एनजीओ का है मेरी लाइफ में या मेरे डिसीजन मेकिंग में, उसमें मेरे को स्टिल उसी में रहना है या मुझे बैक ऑफ करना है, तो ये सारी चीजें पहले इंडिविजुअल अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं लेगा ना, तो कोई भी एनजीओ हो या हम एक मैन्ड जो या मैनेज्ड बोले हम वैसा प्लेटफॉर्म भी बनाए, तो फाइनली होगा क्या, कोई भी प्लेटफॉर्म हो जहाँ जैसे अभी सविता मैडम ने बोला कि हम एक नेटवर्किंग का बनाए जहाँ पे कि कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन फाइनली किसी ना किसी को तो उसको चलाना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल रेडियो उड़ाने, तो आज इसको कोई ना कोई तो ड्राइव कर रहा है, किसी न किसी का तो थॉट प्रोसेस है, उसने जो सोचा उसको जितना पता है वो उस हिसाब से सही कर रहा है, वो अपने एंगल से बेस्ट करना चाहता है। भले वो जैसे फॉर एग्जांपल है सुष्मिता मैडम लेट आई तो दानिश ने उसको डांट दिया, तो दानिश की सोच है कि हाँ सुष्मिता मैडम लेट आई, लेकिन सुष्मिता मैडम क्यों लेट आई, कैसे लेट आई, वो सब अलग बात है। तो इसके लिए क्या होता है ना, एक अपनी इंडिविजुअल सोच हमेशा जो भी उस प्रोग्राम को ड्राइव कर रहा है उसके लगेगी। तो वहां एज एन इंडिविजुअल अगर मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि मैं उसको सेंसिटाइज करूं कि हाँ अगर जैसे हम डिसेबल्ड खुद ही हम करें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेवे कि जो भी अगर हमारी मास वेडिंग करा रहा है मैं वहां जाऊं तो मैं वहां लोगों को कम से कम अपने तरफ से सेंसिटाइज तो करूं, भले वो ड्रॉप इन द ओशन है बट वैसे ही ड्रॉप्स मिलके कहीं ना कहीं तो बात आगे बढ़ेगी। ये मेरे पॉइंट्स थे। सॉरी मैं दानिश आपका सवाल नहीं, नो प्रॉब्लम। मेरा सवाल सिंपल सा है कि गेट टुगेदर को प्रेफरेंस देनी चाहिए जब मास वेडिंग। मेरे हिसाब से देखिए गेट टुगेदर के बिना मास वेडिंग करवाना बहुत डिफिकल्ट है, या मेरे हिसाब से गेट टुगेदर बेस है, भले शादी होए न होए हमें पहले फ्रेंड्स बनाने लायक तो कोई दोस्त मिले, अगर फ्रेंडशिप होगी तब मैं उससे आगे शादी की। मेरी इंडिविजुअल थॉट है कि अगर वो मेरा दोस्त बन सकता है तो शायद मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है। जी लेकिन एक बात मैं करना चाहूंगी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन अगर आप गेट टुगेदर की बात करते हो तो आप बताइए कि आपको अगर गेट टुगेदर जाना पड़े दिल्ली में तो आप कितनी बार विजिट करोगे? ये बहुत मुश्किल है दूर दूर से लोगों के लिए सिर्फ गेट टुगेदर के लिए आना, लेकिन अगर आप वेडिंग के लिए वहां जाओगे तो इस हर कोई चाहता है कि सबकी वेडिंग हो, राइट? तो वेडिंग के पर्पज से बोलोगे तो थोड़े लोग कदम उठाएंगे चलने के लिए, लेकिन आप सिर्फ गेट टुगेदर के लिए बोलोगे तो लोग कदम वहां पे रोक लेते हैं इतने, क्योंकि मैंने बहुत सारे गेट टुगेदर अरेंज भी किए हैं और मैंने अटेंड भी किए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि लोग ज्यादा 100 रुपए भी अगर कोई उसकी फीस भी रख देते तो बोलते यार 100 रुपए कौन वेस्ट करेगा, जाने आने का इतना खर्चा, फायदा क्या जाके, वही तो लेक्चर होता है, वही तो स्पीच होता है। बट जो मोटिव से हम गेट टुगेदर स्टार्ट करते हैं दे डोंट सी दैट कि भाई ये मोटिव है इनका स्टार्ट करने का, लेकिन अब यही वेडिंग के लिए अरेंज करोगे तो वहां पे लोगों का इंटरेस्ट बनेगा कि शायद मे बी मेरा मैच यहाँ पे मिल जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि देखो हर एक चीज को चलाने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म तो चाहिए, और एनजीओ तो जो भी काम करती है वो फंड से, चैरिटी से ही चलता है, मतलब एनजीओ में चाहे वो वेडिंग हो चाहे कोई भी अदर वर्क हो, लेकिन जब तक आपके पास कोई वे नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, आप कैसे जाओगे? इंडिविजुअली तो आप गेट टुगेदर कर नहीं सकते, गेट टुगेदर भी आपको किसी न किसी को अरेंज करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, और कोई भी अपना पैसा लगा के क्यों गेट टुगेदर करेगा? जी वेल नाउ वी आर इन द राउंड ऑफ क्लोजिंग कमेंट। सभी को एक एक मिनट मिलेगा क्लोजिंग कमेंट के लिए। बिफोर दैट मैम, आई डिड नॉट स्कोल्ड यू, आई डोंट वांट टू स्कोल्ड एनीवन। इफ यू फील दैट, आई अपोलोजाइज। Well, I just told to the listeners, one should have, whether Meenal Singhvi ji or anyone, everybody should have the responsibility, because it's a matter of thousands. Now, I give you the listener stat, 4,329 listeners are listening across the world. If panelists do not come at that time, my program goes to vain, and listeners who have come to listen, you all, so we are wasting their time as well. That's why I said it. Well, now the closing comments. अंकित जी, आपके closing comment पूरी discussion को लेके, mass wedding को लेके। जी अंकित जी, I think all disconnected. Yeah, okay, Subhamani sir, go ahead please. Your closing comment. Okay. Now, as I've been reiterating, I feel that mass weddings are a thing of the past. I think mass weddings are the solution for the socialist India. Now we are a sort of a developmental and forward-looking, India which is heading towards superpower. I feel that things should change. People should be treated with more dignity. We talk about empowerment.
but that should begin with a decent and a dignified wedding. So let us choose a method which supports preferences for the individual and gives them the ability to choose and marry people who they like. Let's create an environment for that. Yeah. Okay. Savita ma'am. I agree with the Subramanian sir. आज हमारे पास बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इसके लिए, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए, मैरिज ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए. जितने भी नेटवर्क्स चल रहे हैं वो अगर थोड़ा सा भी टाइम इस चीज के लिए अपने उसमें रखें तो हम इस चीज को बहुत इजीली अचीव कर सकते हैं. और जैसे कि अभी मैम ने भी कहा था कि एक इंडिविजुअल अफेयर है ये, तो लोगों को अपना भी एक वो रखना चाहिए, अपनी तरफ से भी एक एफर्ट रखना चाहिए, और के लिए बहुत सारी राहें हैं. That's my closing comment. मीना सिंह जी. जी सिंघवी जी. जी मुझे भी लगता है कि इस चीज को किसी ना किसी को तो आगे बढ़ के करना चाहिए. जैसे कि अभी सुष्मिता मैम बता रही थी कि वहां पर वो मैट्रिमोनी में लोगों को मिलाती है आपस में, और अगर कोई कपल आपस में मिलके चाहता है कि वो शादी कर ले, अब वो मतलब कर सकते हैं एक दूसरे में, और 20-25 लोग अगर मिलके आते हैं उनके पास और वो अगर मास वेडिंग कर भी दे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई प्रॉब्लम है. मतलब मास वेडिंग अगर इस तरीके से अगर हो भी जाए तो बस इतना है कि एक और नया एनजीओ खड़ा करने की बजाय जो है अगर वही कोई काम करे, वही कोई मतलब जैसे कि आप बोल रहे हो कि इम्प्रूव करने का कोई काम करे. जैसे कि मैंने अभी तमिलनाडु में एक फेडरेशन चैरिटेबल ट्रस्ट देखा था जो कि कम से कम 3 महीने लगाती है एक मतलब मास वेडिंग के लिए. 3 महीने पहले लोगों को मिलाती है आपस में, उनके अपने पर थॉट छोड़ती है कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वो अपना उसके ऊपर मतलब जब जो जबरदस्ती करे या मनाए, वो अपना खुद का इंडिपेंडेंट व्यू से वहां आते हैं और वेडिंग के लिए मतलब हामी भरते हैं. तो अगर आपको इसको स्टैंडर्ड बनाना है तो किसी न किसी मतलब स्टैंडर्ड पर्सन को इसमें इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि मतलब अच्छे लेवल से लोगों से देखिए. अनाबरम सर. Let me put it very differently like this. I think marriage is a lifetime event. अगर कोई सोचते हैं अगर 100 रुपए खर्च करने बदले मैं डायरेक्टली शादी के लिए ही जाऊं, I think those people do not deserve to be considered. There should be a process wherein 2 individuals are brought together. A choice should be given to them and they have to make a choice. There is an urgent need for honest. I do not really. I think there is a need for NGOs. I mean, it's not fair for us to say because there are good organizations working in the field of disability. All like-minded NGOs can actually create a platform, a network, perhaps, but don't start a network having marriage in mind first. Start a network for the individuals to interact with each other. They can do a lot of things other than the marriage. For example, there are so many family issues that disabled never get a chance to share with others. Let them actually have a chance to share with the people, have contact with the like-minded people. If the friendship fruitions into a marriage, I think that is a welcome step. But I would still insist, till the end, marriages should never happen. No, not even 2 marriages should happen at the same place. I mean, marriages are individualistic and that privacy has to be respected. And because as disabled, we already have one stigma and let's not add another stigma to it. And this is, to me, this leads to another stigma. Thank you. Ji, Sushmita ma'am, your closing comment, please. मेरे हिसाब से शादी मुझे करनी है तो ओनर्स मुझे लेना चाहिए. रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, डिसीजंस मेरे हैं कि मुझे मास वेडिंग में जाना है नहीं जाना है. हाँ, जो बात उठ के आई है ये पूरे डिस्कशन में कि एनजीओ होना चाहिए, नेटवर्क होना चाहिए, नेटवर्क मैट्रिमोनियल के को मद्देनजर होते रख के होना चाहिए. तो मैं एज एन एनजीओ ये प्लेटफॉर्म यूज करके बोलना चाहूँगी कि वॉइस विजन
जो भी गेट टुगेदर्स करता है उसमें अभी तक हमारे पास श्योरली हिंदुस्तान के अलग अलग भाग से लोग आए हैं, और मैं डिफिकल्टी समझती हूँ, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये कार्यक्रम मैं अलग अलग जगह लेकर जाऊं। तो जो भी एनजीओ या जो भी इंडिविजुअल जुड़ना चाहता है, वो चाहता है कि इस तरह का कार्यक्रम उनके वहाँ होए, वो थोड़े भी लोगों को जानते हैं, डिसेबल्ड या नॉन डिसेबल्ड, कि जो इस तरह के कार्यक्रम में आना चाहेंगे, अपने लाइफ पार्टनर ढूंढना चाहेंगे, तो मैं ऑर्गेनाइज करने तैयार हूँ। मुझसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट, मेरा ईमेल आईडी पे sushmita@voicevision.in या हमारी वेबसाइट voicevision.in पे जाके contact@voicevision.in। अपनी ईमेल स्पेल कर दीजिए एक बार। मेरी ईमेल आईडी है सुष्मिता SUSHMEETHA, सुश मीठा लिखती हूँ मैं, है नाम सुष्मिता, सुष्मिता @voicevision voicevision.in। जी, तो आज की डिस्कशन में आप तमाम लोग शामिल हुए, सभी ने अपने व्यूज रखे और काफी लिसनर्स का हमें प्यार मिला, उनकी लगातार हमारे साथ चैटिंग होती रही, उनके क्वेश्चंस भी हमने शामिल किए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अगर आप अपना लाइफ पार्टनर चाहते हैं, जैसे सुष्मिता मैम वॉइस विजन एनजीओ जो गेट टुगेदर होल्ड कर रही हैं, उन्होंने भी आपको वॉइस विजन उन्होंने नहीं वॉइस विजन, तो उन्होंने आपको एश्योरेंस दिया, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, डिसेबल्ड मैट्रिमोनियल वालों से भी कर सकते हैं। और अगर कोई भी एनजीओ रेडियो उड़ान के साथ मिलके प्रोग्राम कैच योर मैच में अगर प्रोफाइल्स देना चाहती है, अगर हमारा कोई सहयोग, तो हम भी वो करने के लिए तैयार है। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू दानिश। और लिसनर्स, आप कहीं मत जाइए, अगला शो मिसेस कंफ्यूजन जस्ट ऑन योर वे। अगर आप कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस शो को सुनना मत भूलें, और हम मिलेंगे आपको फिर अगले संडे एक नई डिस्कशन के साथ, अपने तमाम एनजीओज के साथियों के साथ, अपने तमाम प्रोफेसर्स, मीडिया दोस्तों के साथ, तमाम लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।